Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are all doing well at your homes. You are reading your books, and I urge you to keep going on with whatever you have been given till now. Yesterday we have dealt with the grammar section, and you have been asked to go through the exercise part of the grammar. This I have left over there. Take it. Just to check if somebody has any interest in the studies, if they could do anything in terms of these. You have been actually told about a finite verb and a non-finite verb, and you have been asked the same. You have been completely told about everything, that finite and non-finite verbs are the forms of the main verbs. Take it. A finite verb is the verb which has a subject and it changes its forms as and when we change the number of the subject, person of the subject, first, second, third person, singular, plural, and if we start changing the tense, present, past or future tense, then that finite verb changes its forms with this tense and the number and person of the subject. On the other hand, you have been told about non-finite verbs, and non-finite verbs are those verbs which don't change their forms to show tense or number, and you have been I have already shown you in that previous classes, in our tense classes, that the ing form of the verb, fourth form of the verb, and the third form of the verb, these two are called participles. They don't change their forms whether you are writing in present tense, past tense, future tense, whether you are writing in present continuous, past continuous, future continuous, ing form of the verb is supposed to be used there. Take it. There is no, it's a hard and fast rule, you are not supposed to change. And if you are writing in present perfect tense, past perfect tense, or future perfect tense, you are supposed to use the third form of the verb with the helping verbs. So but here actually there are three types of finite verbs. Finite verbs इसने बोला था non-finite verbs, because the finite verbs change their form. Non-finite verbs because they don't depend on the number and subject of the person or the tenses. तो उसमें participle बोला था, infinitives and gerunds बोला था. I have given you an example of a gerund. Whenever we use the same ing form as a noun in somewhere, it is called the gerund, and it could be used as an adjective. You have been given examples over here in the here in these examples. Suppose here is a verb, they are practicing dancing outside, and the setting sun बोला था, तो यहाँ पे adjective है, यहाँ पे verb बोला था. यहाँ पे देखो the spell has been broken, उस spell को ख़त्म कर दिया, किसी ने तोड़ दिया, तो यहाँ पे verb था. and here you have been given the broken glass. I removed the broken glass. मैंने कौन सा गिलास हटाया जो टूटा हुआ, तो this is adjective, isn't adjective. Now let's go ahead. ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम क्या है. Complete the sentences with the correct forms of the verbs. Now you have to keep your focus on the different forms of the verbs. Okay? In the brackets, now number one has been done. I have, as you have been given here, helping verb have. Remind, to remind it. क्योंकि हर उसको याद दिलाए, to bring the camera. कैमरा लाना की बात मैंने उसको याद दिलाई है. आप देखो यहाँ पे क्या हो सकता है. Smile pleasantly. She welcomed them into the house. तो यहाँ पे क्या हो सकता है. स्माइल बहुत प्यार से, बहुत ही खुशी के साथ क्या करते हुए, स्माइल प्लेजेंटली होगा. क्या होगा, आपको बोला इसने क्या यूज़ करना है आपको. ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है, तो स्माइलिंग है. ठीक है, क्योंकि हमें गारंटी या इन्फिनेटिव यूज़ करना है इसमें. ठीक है, स्माइलिंग, तो देखो खुशी बहुत, आप यहाँ पे गारंट है, बहुत ही मुस्कुराते हुए और खुशगवार खुशी के साथ. शी वेलकम्ड, उसने हमें वेलकम किया. अब देखो ये ना पास्ट टेंस शो कर रहा है ना प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है, किसी भी जगह यूज़ होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है. वी सॉ, हमने देखा पास्ट में. ए ट्रूली फ्राइट फिल्म है यस्टरडे. तो फ्राइटन, तो वर्ड है, वर्ब है. अब इसका क्या होगा. अब हमने बोला था कि पार्टिसिपल जो है एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है, तो फ्राइटनिंग फिल्म होगा. ठीक है, फ्राइटनिंग एन ing. देखो तो फिल्म के साथ डरावना था, एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ. अब यहाँ पे दे हैव, अब डिसाइड है, तो डिसाइड का दे हैव के साथ है. डिसाइडेड
वो आपकी थर्ड फॉर्म होगी। टू टेक द ट्रेन टू दिल्ली, दिल्ली के लिए वो ट्रेन लेकर ट्रेन पकड़ कर जाएंगे। आई हैव टेकन डाउन, टेक का देखो फिर से वही प्रेजेंट परफेक्ट है, मैंने उतार लिए हैं। ऑल माई पोस्टर्स फ्रॉम द वॉल, दीवार से सारे मेरे पोस्टर्स, ठीक है। आई एम वेयरिंग, आज मैंने पहना हुआ है। अब वेयरिंग ऐसा वर्ड है जिसको पहना हुआ है भी के लिए यूज़ करेंगे, पहन रहा हूँ के लिए भी यूज़ करते हैं। तो आई एम वेयरिंग कॉटन ट्राउजर्स टुडे, आज मैंने कॉटन ट्राउजर्स पहने हुए हैं। द वंस आई हैड वॉर्न, वेयर वेयर वोर एंड वॉर्न, ठीक है, जो मैंने पहले पहना हुआ था। तो पास्ट परफेक्ट में देखो फिर से वॉर्न थर्ड फॉर्म तो वर्ब हो गया। आई हैड वॉर्न यस्टरडे वेयर वुलन, जो मैंने कल पहने हुए थे वो क्या थे, वुलन थे। अब हमें यहाँ तक पता चल गया था, इसमें तीन चीज़ें बोला उसने। अभी हमने पार्टिसिपल्स यूज़ किया, पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया, इसमें देखो एज ए जेरंड यूज़ किया यहाँ पे पार्टिसिपल, सॉरी यहाँ पे स्माइलिंग प्लेजेंटली, तो यहाँ पे वर्ब यूज़ किया क्योंकि ये किसी टेंस को नहीं शो कर रहा है, मुस्कुराते हुए, ठीक है। और ये फ्रेज है तो बहुत ही खुशी के साथ क्या किया उसने, वेलकम किया, हमें खुशामदीद किया। इसमें देखो एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया, यहाँ पे वर्ब यूज़ किया, यहाँ पे वर्ब यूज़ किया, पार्टिसिपल्स यूज़ किए ना पूरे दो पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो अब देखो, अब हमें आगे है इन्फिनेटिव एंड जेरंड है। तो फ़र्क क्या था, थोड़ा सा आपको पहले वाले वीडियो में बताया था यहाँ पे मैंने, ठीक है। अब आगे जाते हैं। इट इज़ द सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, ये सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, ये इसके बारे में थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो इट इज़ है, ये है सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है। विथ और विदाउट वर्ड टू, या तो टू के साथ होता है या टू के बगैर होता है, विथ या विदाउट, के साथ या के बगैर, किस वर्ड के साथ, टू के साथ। तो आई वॉन्ट टू डांस, देखो आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर, इसको मत काट के फेंक दो। आई वॉन्ट टू रिसाइट द होली कुरान, मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ। तो इस तरह से कुछ भी ज़रूरी नहीं है, कचरा है तो उसको साइड में कर दो। दे आर हियर, वो यहाँ पे हैं, टू हेल्प यू, आपकी मदद करने के। तो इन्फिनेटिव हो गया, आपको सिखाया था मैंने, ये बनाना बहुत आसान होता है और गेरंड बनाना भी बहुत आसान होता है। अगर इस यहाँ पे हेल्प है तो हेल्पिंग हो जाएगा, डांस है तो डांसिंग हो जाएगा, स्लीप है तो स्लीपिंग हो जाएगा, ईट है तो ईटिंग हो जाएगा, टू ईट हो गया, टू स्लीप हो गया, टू वॉक हो गया, टू राइट हो गया, कुछ भी, बहुत आसान। तो इट इज़ द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। जिन्होंने ग्रामर वाला पोर्शन पढ़ा है उनके लिए तो बहुत ही आसान है और सब कुछ समझ सकते हैं। तो इट इज़ द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट फंक्शंस, देखो ये है क्योंकि एक की बात कर रहा है जेरंड, तो यहाँ पे हमने प्रोनाउन यूज़ किया। इट इज़, ये है द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। कौन सा फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। दैट यहाँ पे जो है, क्योंकि अब ये एक है, जो एक के बारे में बता रहा है तो फंक्शन पे एस लगा, वर्ब पे एस, जो काम करता है, लाइक ए नाउन, एक नाउन की तरह। आई प्रेफर सिंगिंग, मैं सिंगिंग पसंद करूँगा, ठीक है। अब देखो दो तरह यूज़ होता है, या तो प्रेडिकेटिव होता है या तो ऑब्जेक्टिव में यूज़ होगा, या फिर आपको सब्जेक्ट में यूज़ होता है। तो रीडिंग बोला, अभी पढ़ना, मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा गाना, तो गाना एक्शन का नाम है। तो रीडिंग इज़ व्हाट नेहा लाइक्स बेस्ट। अब देखो नेहा लाइक्स थर्ड पर्सन है, तो रीडिंग है, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा क्योंकि एक ही बात कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ज़रा इस नोट को गौर करो, नोट इस बात को गौर करना है। द जेरंड एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल हैव, क्योंकि दो की बात हो गया, एक तो जेरंड हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, दोनों है तो आईएनजी फॉर्म लेकिन अलग अलग नाम है। तो ये दोनों हैव क्या होता है, द सेम आईएनजी फॉर्म, उनके बिल्कुल एक जैसा आईएनजी फॉर्म होता है। दिस समटाइम्स, ये चीज़ जो है, क्योंकि ये सिंगुलर दिस एक की बात कर रहे हैं तो समटाइम मेक्स, ठीक है, फिर से वो पर एस लगाए, ये बनाता है, इट मेक्स इट डिफिकल्ट, मुश्किल बनाता है, टू आइडेंटिफाई, यहाँ पे भी खुद इन्फिनिटिव यूज़ किया है, द टू, इन दोनों को पहचाना थोड़ा मुश्किल बन जाता है। तो एट सच टाइम्स, ऐसे मुश्किल टाइम पे क्या करते हैं, वी मस्ट रिमेंबर, हमें ये बात ज़रूर याद रखना चाहिए, दैट, अब यहाँ पे की है, जो नहीं, कि द गेरन बिहेव्स, अब गेरन ये फिर से सिंगुलर है, बिहेव पे एस लगाया, देखो वो प्लस बिहेव करता है लाइक ए नाउन। द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म्स, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म्स होता है द कंटिन्यूअस टेंसेस, ठीक है, ऐसे ये बनाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है, आप ये थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो फिर से एज लगाए हुए, देखो फॉर्म्स द कंटिन्यूअस टेंसेस, ये कंटिन्यूअस टेंस बनाता है। और एक्ट्स, या फिर एक पे भी एस लगाए क्योंकि ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं, लाइक एन एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ईटिंग इज नेसेसरी फॉर ऑल एनिमल्स, हर जानवर के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। आई वॉज ईटिंग, अभी देखो, अब यहाँ पे वर्ब है,
यहाँ पे gerund है. I was eating mangoes, mangoes खा रहा था yesterday, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहाँ पे gerund है. तो एग्जाम्पल हो गया. अब आपको क्या दिया हुआ है, यू हैव बीन गिवन एन एक्सरसाइज ओवर हियर, कंबाइन दीज सेंटेंसेस यूजिंग इन्फिनिटिव्स. आपको इन्फिनिटिव यूज करके इस सेंटेंसेस को, इन जो यहाँ पे सेंटेंसेस दिया हुआ है उनको कंबाइन करना है, इन्फिनिटिव यूज करना है. लाइक द वन हैज बीन डन फॉर यू, ही इज वर्किंग हार्ड, वो बहुत ही सख्त मेहनत कर रहा है, तो ING के साथ है. ही विल कम फर्स्ट इन हिज क्लास, क्योंकि सख्त मेहनत कर रहा है तो वो कम, ही विल कम, अब फ्यूचर में वो आएगा, फर्स्ट आएगा ही ऑब्वियसली इन हिज क्लास. तो देखो ही इज वर्किंग हार्ड टू कम फर्स्ट इन हिज क्लास. अब देखो यहाँ पे इन्फिनिटिव यूज किया, तो आपको इस तरह यहाँ पे करना है. निधि वेंट टू द शॉप, शील बाय ब्रेड एंड बटर. ठीक है, निधि वेंट टू द शॉप, तो आगे क्या लिखेंगे, टू बाय, सीधा खत्म, टू बाय ब्रेड एंड बटर. आगे वाला आप खुद करोगे, ट्राई योर बेस्ट. ठीक है, बिकॉज आई अर्ज यू टू ट्राई योर बेस्ट है. ठीक है, इन वट एवर सिचुएशन यू आर. सो यहाँ तक हो गया. इसके बाद द नेक्स्ट एक्सरसाइज यू हैव बीन गिवन ओवर हियर, ऑल्दो I'll deal with it in the next class, but I want you to try first of all by yourself. ठीक है, तो यहाँ पे बोला अंडरलाइन. ना सी पार्ट, अंडरलाइन द gerunds या gerunds in these sentences. All the sentences may not have gerunds. may not have, नहीं हो सकता है, हर किसी के पास gerunds नहीं हो सकते. फरहान इज फॉन्ड ऑफ, फरहान बहुत शौकीन है किसका, ऑफ प्लेइंग फुटबॉल. अब देखो प्रीपोजिशन के बाद आपको क्या लगता है, gerund लगता है. तो देखो खेलने का, फुटबॉल खेलने का उसको बहुत शौक है, अब फुटबॉल खेलना काम है खुद. तो यहाँ पे देखो हिज मदर वॉज टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर हिम, तो यहाँ पे ये है, दूसरा मैंने मार्क कर दिया, पहले उसने किया हुआ था, बाकी आप ट्राई करोगे. ठीक है, देन वी विल गो फर्दर, वी विल ट्राई टू complete our prescribed works as quickly as possible, because there are a lot of works still remain. So keep it till here. We will continue in the next class. Thank you for your kind attention.